Hi everyone, welcome to Europedia. So as you all know that we are in IIT Rockford for academic profiling, and right now I am with Dr. Reet Kamal Tiwari. And sir, first of all, I welcome you on my platform, and that is Europedia. Thank you. And sir, first of all, tell me about yourself, about your journey. Yeah, so hello viewers. So I am Dr. Reet and I am working here as an assistant professor in the Department of Civil Engineering. The broad area of my research and my domain, you can say, is the geomatics. I have done my PhD from IIT Roorkee. My department was both Earth Science and Department of Civil Engineering. Before that, I have done my masters in geology and masters in remote sensing and GIS. So during my PhD, I was more interested into the glaciers, so I did my PhD into glacier. I studied the glacier, Chota Sigri Glacier, developed different methods for mapping the glacier, calculating the velocities and all those things, because you know that glaciers are melting nowadays due to climate change, and that are very integral part of our climate and the ecosystem, because if there is no glacier, the sustainability and the perenniality of the rivers are in danger. So that is an important aspect. Then when I joined here, this area is Punjab. So Punjab is known for its agriculture. Right. So I started to work on the agriculture, the application of remote sensing and GIS in agriculture. So Dr. Akshat Tripathi, he completed his PhD under my supervision. Now he has joined as faculty at IIT Patna. He was my first student, and he was the first student of the department also who did his PhD. So after that, another area, because we are very close to Himalayas here, so apart from the glacier, I also started to work on the landslide. So with in the landslide, I am working with the geotechnical group, Dr. Naveen James. There we have got some recent success in even predicting the future scenarios of the landslide susceptibility. In Himalayas, you know, shall I continue? Yeah. Little bit. Yeah. So in Himalayas, you know that the land use are changing quite rapidly nowadays. The government's focus is the development of Himalayas. Yes. Because lot of our population live there, and earlier they were living in a condition, the roads were very narrow, it was very dangerous to drive. Now the infrastructure building has taken a pace in the Himalayas. So with any development in Himalaya, there will be some consequences also, such as landslides and other things. So we need to find out that which areas are vulnerable to landslides, and especially when the land use is changing, because other factors will remain same. The soil will remain the same, the water bodies will remain, the lineaments will remain the same, the geotechnical properties of the soil will remain the same. But what is changing? The climate is changing. Yes. And the land use is changing. So land use area which the slope which is vacant now, some houses are built, some industry is built, some roads are built. So we used the current scenario and predicted the future land use pattern, that what will be like land use in 2020, 2030 and 2050. And then we there are several models which also predict the climate change. So we use different climate scenarios and find out what will be the climate then. So used those two dynamic factor into our model and calculated that how the landslide susceptibility will change if the land use change pattern remains the same, and the climate change also remains the same. Although these are the dynamic factors, that may not be the exactly the same change that we are anticipating now will happen at 2050, but it may be higher, it may be lower. But this type of model can give us give our planners some idea that if we change the land use like this, what will be the change in the
landslide patterns. Landslide patterns. So we can be prepared from earlier, because what structures that we will be developing, that we can create something which is resistant to landslide, or the slope we can first stabilize the slope and then we can build the structure, something like that. So it will be highly useful for our planners and the local authorities. So that type of research we are doing here. ओके, सो बेसिकली सर रिमोट सेंसिंग में यही हो रहा है कि जैसे आज का जितना भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हिमालयन रीजन में बनी हुई है, जैसा आज का क्लाइमेट है और वट एवर द लैंड स्लाइडिंग इज देयर, तो आप रिमोट सेंसिंग से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में भी आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहेंगे एंड बेसिकली आफ्टर 20 और 30 ईयर्स कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे भी होंगी उसके हिसाब से क्या चेंज आएगा पैटर्न में। हाँ जी, दिस इज द प्रोजेक्ट। हाँ, अभी तो हम ऑब्जर्व करते ही हैं। हमने इसमें क्या किया कि हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया अभी तक के चेंज पैटर्न को लेकर के, कि जैसे 2000 में ऐसा था, 2005 में ऐसा हो गया, 10 में ऐसा हो गया, तो एक हमें पैटर्न मिल रहा है कि इस पैटर्न में चेंज हो रहा है। तो इस पैटर्न को लेकर के हमने प्रेडिक्ट किया कि 2050 में क्या होगा, कितने डेवलपमेंट हो जाएंगे। और उसके हिसाब से जब हम एक बिल्डअप एरिया की बात करते हैं तो लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी वहाँ बढ़ जाती है। अगर एक हमारा स्लोप है जो वेजिटेटेड स्लोप है और एक स्लोप है जो बैरन स्लोप है, तो बैरन स्लोप में हमारे ज़्यादा दोनों का सॉइल मटेरियल सेम है, तो बैरन स्लोप जो है उसमें हमारा चांसेस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और इन सब चीज़ों के कारण हमारा चांसेस ज़्यादा रहेगा कि यहाँ लैंडस्लाइड होंगे। सर एज यू सेड दैट एग्रीकल्चर में भी आप, जैसे पंजाब एरिया में आपने बताया, तो एग्रीकल्चर फील्ड में भी यू आर वर्किंग एज अ रिमोट सेंसिंग। इन व्हाट सेंस, इन व्हाट मैनर दिस रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन एग्रीकल्चर? कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली लिटिल? या अभी तक हमने दो चीज़ों पे काम किया, एक तो सॉइल हेल्थ पे और दूसरा यील्ड प्रेडिक्शन में। ओके। अभी तक गवर्नमेंट जो कर रही है वो करती है कि बिकॉज एक ही तरीका है हमारे पास यील्ड जानने का किसी भी एरिया का, वो है क्रॉप कटिंग एक्सरसाइज, कि हमने कुछ प्लॉट्स ले लिए, वहाँ पर हमने क्रॉप कट किए और उसका हमने एक मेजर्ड एरिया में यील्ड हमने मेज़र कर लिया कि अच्छा पर एकड़ इतना यील्ड आ रहा है। तो अगर हम इस मेथड से करते हैं तो हम पूरे पंजाब में इतना बड़ा एरिया है या पूरा भारत हमारा इतना बड़ा एरिया है, हम कितनी ही सैंपल्स ले सकते हैं। 100 ले लेंगे, 50 ले लेंगे, 500 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे, उससे ज़्यादा तो हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरे एरिया में सैम्पलिंग नहीं कर सकते हैं। तो हमने रिमोट सेंसिंग डेटा को यूज़ करके यील्ड प्रेडिक्ट किया कि पूरे पंजाब का यील्ड क्या होगा फॉर वीट। हमने ये वीट पे हमने काम किया था। तो वीट और राइस का प्रेडिक्शन तो बहुत आसान है, वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी तक जो प्रेडिक्शन मेथड्स बने हुए थे वो प्लांट के ग्रोथ के हिसाब से प्रेडिक्ट करते थे। हमने इसमें 3 डायनेमिक फैक्टर्स को भी डाला, जो है सॉइल हेल्थ, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल मॉइस्चर और ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट। ओके। ऑर्गेनिक कार्बन इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर ऑर्गेनिक कार्बन सॉइल में जितना ज़्यादा रहेगा या जितना कम रहेगा उस पर डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन, पोटेशियम और इनका एब्जॉर्प्शन कितना होगा, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कितना होगा, इसको एक तरह से इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। सॉइल सैलिनिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सॉइल सैलाइन हो जाएगा तो आपका यील्ड घट जाता है। तो अगर हम इन पैरामीटर्स को अपने प्रेडिक्शन मॉडल में, यील्ड प्रेडिक्शन मॉडल में डाल देते हैं तो हमारी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम रिमोट सेंसिंग से यील्ड प्रेडिक्ट करते हैं तो इसमें हम जैसे हमने जो डेटा यूज़ किया था वो 10 मीटर बाय 10 मीटर का एरिया को एक सिंगल प्रेडिक्शन हमें देता था, वो 1 पिक्सल का साइज़ था हमारा। तो हम 10 मीटर बाय 10 मीटर के एरिया में यील्ड हम मेज़र कर रहे हैं। एक तो हमारा जो क्रॉप कटिंग एक्सरसाइज है वो पूरे हम पंजाब में मान लीजिए 50 ले रहे हैं सैंपल, यहाँ हमें हर 10 मीटर बाय 10 मीटर का हम यील्ड प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इसको हम और भी बेहतर करने के लिए अभी नेक्स्ट लेवल पे हम जब काम कर रहे हैं तो उसमें हम ड्रोन डेटा वगैरह को यूज़ करके यील्ड प्रेडिक्शन पे काम कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि आपको एग्जैक्ट यील्ड का आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि हम इंश्योरेंस सेक्टर, क्रॉप इंश्योरेंस होता है आप जानते हैं, राइट, यस। तो क्रॉप इंश्योरेंस में अभी क्या होता है कि
कुछ फार्मर्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है भारत में, लेकिन अभी भी आपने ये सुना होगा कि हमारा नुकसान हुआ क्रॉप में लेकिन हमें मुआवजा नहीं मिला। तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि हमारे पास उतना डेटा नहीं है कि किसको नुकसान हुआ किसको नुकसान नहीं हुआ। पहुंच वाले लोग अपने नुकसान का भरपाई कर लेते हैं, कुछ लोग जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम यील्ड प्रेडिक्शन करते हैं, से इवन विलेज लेवल का हम कर लेते हैं, तो इस विलेज में नुकसान हुआ तो उस विलेज के लोगों को हम कंपनसेट कर सकते हैं। और यील्ड प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं, यानी कि क्रॉप कटने से पहले हम जान रहे हैं कि हमारा यील्ड क्या होगा। तो हम पहले ही जान जाएंगे कि इस एरिया में हमारा नुकसान होने वाला है, तो उस एरिया के फार्मर्स के लिए हम पहले से कुछ उपाय कर सकते हैं, उनको हम मुआवजा दे सकते हैं, या उनके लिए अगर हम कुछ इंटरवेंशन कर सकते हैं तो वो हम कर सकते हैं। प्लस हमारे पास प्लानिंग के लिए, क्योंकि हम जब भी कोई अपना प्लानिंग करते हैं, गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है, तो वो दलहन कितना होने वाला है, ये कितना होने वाला है, उसके बेसिस में बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। अपने एक्सपोर्ट के नीड को, इंपोर्ट के नीड को हम प्लान करते हैं। तो अगर हम पहले से यील्ड के बारे में जान जाएं कि इस क्रॉप का यील्ड कितना होगा, तो उसको पहले से प्लानिंग किया जा सकता है। और इसमें गवर्नमेंट भी काफ़ी सीरियसली काम कर रही है, क्योंकि 1-2 प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने रन किए हैं जो इसी चीज़ को है कि आप राइस का, वीट का और अदर क्रॉप्स के यील्ड प्रेडिक्शन जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी से आप कीजिए। और उसके लिए काफ़ी मैसिव एक्सरसाइज गवर्नमेंट ने कराया है। और मुझे लगता है कि आज से 5 साल, और 5 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे पहले ही जो ये क्रॉप कटिंग एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाएगी और हम जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी AI/ML का यूज़ करके यील्ड प्रेडिक्शन करेंगे। सेम डेटा विल बी यूज्ड फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस ऑल्सो। तो इसमें फिर कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मेरा नुकसान हुआ और मुझे मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा, एग्जैक्ट डेटा होगा कि कहाँ कहाँ किस प्लॉट में नुकसान हुआ। तो ये एक बेनिफिट होगा। अभी हम ड्रोन डेटा से कर रहे हैं इस पे काम, और उस पे हम ये भी काम कर रहे हैं कि हम न्यूट्रिएंट कंटेंट को भी सॉइल में मैप कर सकें। अभी क्या होता है कि फार्मर के पास यूरिया मिल गया, उसने पूरे खेत में यूरिया डाल दिया, लेकिन क्या ज़रूरत था वहाँ यूरिया डालने का? अब हर साल हम सॉइल हेल्थ कार्ड तो बना नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको सॉइल सैंपल ले जाना है, टेस्टिंग कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या है कि हम सॉइल सैंपल ले जाएंगे तो खेत से एक जगह से ले जाएंगे, या 2 जैसे 5 जगह से ले जाएंगे। खेत हमारा 1 एकड़ का एक खेत है। अगर रिमोट सेंसिंग से हम करते हैं तो हम हर 1 मीटर बाय 1 मीटर के एरिया में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर फर्टिलाइजर की ज़रूरत है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो हमारे इक्विपमेंट भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। जैसे US में भी होते हैं कि जो स्प्रे करने वाले होते हैं और ये सब जो इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, उसमें आप फीड कर दीजिए पहले से कि यहाँ पे आपको इतना स्प्रे करना है, यहाँ पे इतना स्प्रे करना है, तो इक्विपमेंट खुद से जाएगा, उतना स्प्रे करता है। तो हमें उसके लिए नॉलेज चाहिए कि कहाँ पे कितना कंटेंट है हमारे पास, वो हम रिमोट सेंसिंग से कर सकते हैं, और उस पर हम अभी काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। सो रिमोट सेंसिंग जो अभी आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में बताई, तो ये गवर्नमेंट आई थिंक 2 या 3 साल में अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऑलरेडी कर रही है, बहुत सारे क्रॉप से गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया है। अब इसको कितनी जल्दी सर किसी स्टेट में, मतलब किस स्टेट में हुआ है? अगर गवर्नमेंट ने स्टेट का चॉइस छोड़ा था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या जो टेंडर में पार्टिसिपेट किए थे उनके ऊपर, लेकिन दे आस्क कि देयर शुड बी एटलीस्ट 3 or 5 different states that you should select. Under each state you should select 5 different blocks, so that whatever model that you generate, that should not be area specific. That should widely represent the entire Indian agricultural system. तो जो कंडीशन पंजाब में होगा तेलंगाना में वो कंडीशन नहीं होगा। तो आपको इधर से भी कुछ लेने हैं, इधर से भी कुछ लेने हैं। तो जो आपके मॉडल डेवलप होंगे फाइनल, वो रॉबस्ट होंगे कि वो तेलंगाना का भी प्रेडिक्ट अच्छे से कर रहा है, पंजाब का भी अच्छे से कर रहा है, झारखंड का भी अच्छे से प्रेडिक्ट कर रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने चॉइस छोड़ा था जो प्रोजेक्ट को रन कर रहे थे, बट उसमें लिमिटेशन दिया था कि आपको इतने स्टेट लेने हैं, इतने ब्लॉक्स लेने हैं, इतने विलेजेस लेने हैं। इस टाइप से गवर्नमेंट ने उसको किया है। तो मुझे लगता है कि अब मैच्योर होने में टाइम लगेगा, बट इट विल बी मैच्योर्ड सून इनफ हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग।
सो ये रिमोट सेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी आई है, ये मतलब आने वाले टाइम में अगर करियर अपॉर्चुनिटी की टर्म्स में अगर मैं सर बात करूं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना फ्यूचर चाहते हैं, अपना अपॉर्चुनिटी करियर चाहते हैं कि मैं रिमोट सेंसिंग में कुछ करना चाहूँ। बिकॉज आज के टाइम पे हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ देयर, 3D प्रिंटिंग इज़ देयर, मशीन लर्निंग, ऐसे से हम बातें करते हैं। तो रिमोट सेंसिंग भी एक हमारे पास स्कोप है, तो इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे लगती है, क्या मतलब? देखिए हमारे यहाँ चूँकि हम लोग नए डिपार्टमेंट हैं, तो हमारे यहाँ अभी रिमोट सेंसिंग में पीएचडी प्रोग्राम है। एमटेक प्रोग्राम अभी नहीं है हमारे यहाँ। हम बीटेक में भी रिमोट सेंसिंग पहले नहीं पढ़ाया जाता था उतना, लेकिन हम अपने यहाँ जियोमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम हाफ ऑफ द कोर्स इज सर्विंग एंड हाफ ऑफ द कोर्स इज रिमोट सेंसिंग। ओके। तो हम और एमटेक में वाटर एंड एनवायरनमेंट है हमारा, उसमें भी एडवांस रिमोट सेंसिंग हम पढ़ाते हैं। पीएचडी प्रोग्राम हमारे यहाँ काफ़ी रोबस्ट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे यहाँ से कर रहे हैं पीएचडी। 10 से 12 स्टूडेंट मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। डिफरेंट एरियाज़ में। रिमोट सेंसिंग में अगर स्कोप की बात की जाए तो आज से 20 साल पहले थोड़ा कम था, या 10 साल पहले भी कम था, लेकिन अभी जो करंट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, ये ओपन जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी लेकर के आई। उसके बाद भारत में रिमोट सेंसिंग की कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स की भी आने की शुरुआत हो गई है और काफ़ी सारे प्राइवेट प्लेयर। पहले हमारा पॉलिसी इस तरीके का था कि प्राइवेट प्लेयर्स कैन नॉट वर्क ऑन द maps and this geospatial data openly. But now even the satellites are launched by private companies. Yes. Recently, last year, I think it was launched by a Bangalore-based company in collaboration with the ISRO. So now many private players are coming into this domain. So we can say that the scope of remote sensing is increasing day by day, and if you will see each and every sector लाइक एग्रीकल्चर आप ले लीजिए, रिसोर्स मैपिंग ले लीजिए, जो भी अर्बन प्लानिंग ले लीजिए, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस विल बी द फ्यूचर। इट इज़ द फ्यूचर एंड विल डेफिनेटली बी अ फ्यूचर बिकॉज यू नीड टू अपडेट द मैप। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत में अंग्रेज़ों के ज़माने में टोपोसीट बन गया और वो पूरे भारत का आज तक अपडेट नहीं हो पाया है। सर्वे ऑफ इंडिया इतनी काम करती है, बट वो रिसोर्सेज चाहिए आपको कि आप उसको रैपिडली अपडेट कर सके। हर साल हम अपडेट करें, 2 साल में, 3 साल में अपडेट करें, और उसके लिए आप जब तक रिमोट सेंसिंग का हेल्प नहीं लीजिएगा आप नहीं कर सकते हैं उतने रेगुलरली। तो अभी आप देखिए जैसे स्वामित्व स्कीम है और डिफरेंट स्कीम है, उसमें सारे चीज़ों में गवर्नमेंट किस चीज़ का यूज़ कर रही है? रिमोट सेंसिंग का, ड्रोन्स का। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होना, रिमोट सेंसिंग का यूज़ होना, आज इंडिया इज़ we can say third among the space technology over the entire globe। हमने जितने सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च किए हैं उतने किसी भी कंट्री ने लॉन्च नहीं किए हैं। 100 more than 100 सैटेलाइट इन वन गो। सो अभी रिसेंटली निसार मिशन लॉन्च होने वाला है, जो कि इसरो और नासा का एक जॉइंट कोलैबोरेटिव मिशन है। तो जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स के आने से आपका करियर अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेगी। यस, गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी आपका स्कोप है ही, बट गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा प्राइवेट, देखिए गवर्नमेंट सेक्टर कैन नॉट प्रोवाइड द जॉब टू एवरीवन। यस। आईटी में इंडिया आगे क्यों है? इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आप इतने सारे प्राइवेट, जो भी आप बड़ी कंपनी है सारी यहाँ पे हैं, तो यू हैव अ स्कोप देयर। उसी तरीके से जियो स्पेशियल में भी अब प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे हैं, तो देयर विल बी, तो आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा इसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। यस। ओके सर, इज़ देयर नेसेसिटी टू कि हमारे पास पीएचडी होनी चाहिए अगर मेरे को इसमें जॉब चाहिए, या एमटेक से भी मेरे को जॉब मिल सकती है अगर मैं रिमोट सेंसिंग में काम करना चाहूँ? देखिए, अगर रिमोट सेंसिंग में आप काम करना चाहते हैं एमटेक इज सफिशिएंट। ओके। लेकिन आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं? जैसे आप एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आईटी इंडस्ट्री का ही ले लीजिए। नॉन कोर सेक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होती है, नॉन कोर सेक्टर में भी होते हैं कि फ्यू पीपल आर कोड डेवलपर, वो कोड डेवलप करते हैं। कुछ होते हैं जो आर&डी में जाते हैं, तो आर&डी में यूजुअली वो एमटेक और पीएचडी को प्रीफर करते हैं। कोई भी कंपनी प्रीफर करती है कि अगर एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पे काम करना है तो वहाँ पर वो पीएचडी को प्रीफर करेगी। एमटेक भी वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि एमटेक में भी आपका रिसर्च ओरिएंटेशन स्टार्ट हो जाता है। एमटेक इज़ नॉट ओनली अ डिग्री वेयर लाइक बीटेक यू जस्ट स्टडी सेवरल कोर्सेज।
accumulate certain credit and get the degree. एमटेक में भी आप अगर एमटेक का स्ट्रक्चर आप देखिएगा तो 1 साल आपको वहाँ पर प्रोजेक्ट करना पड़ता है. तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिनी प्रोजेक्ट दैट यू डू इन योर पीएचडी में आप ज़्यादा डिटेल्ड करते हैं, लेकिन एमटेक में भी आप एक रिसर्च ओरिएंटेशन आपका स्टार्ट हो जाता है. सर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, जैसे आप बता रहे हो रिमोट सेंसिंग में आप कौन सी लाइन में जाना चाहते हो, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिमोट सेंसिंग के अंडर हम कर सकते हैं, क्या क्या है वो? आप पहला तो अर्बन स्मार्ट सिटीज़ है. स्मार्ट सिटीज़ के अर्बन प्लानिंग में रिमोट सेंसिंग का काफ़ी यूज़ है. रिवर वाटर रिसोर्सेस में काफ़ी यूज़ है. फ्लड डिजास्टर में आपका रिमोट सेंसिंग का यूज़ है. डिजास्टर के लिए बेस्ट टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं रिमोट सेंसिंग, क्योंकि इन केस ऑफ अर्थक्वेक और इन केस ऑफ फ्लड आप एरिया में जा नहीं सकते हैं. तो उस एरिया में जब आप जा नहीं सकते हैं तो रिमोट सेंसिंग इज़ द ओनली टूल लेफ्ट फॉर यू टू गो एंड स्टडी. जैसा नेपाल अर्थक्वेक आया था, तो नेपाल अर्थक्वेक का उन्होंने एग्जैक्ट मैपिंग कर लिया कि विद इन अ मंथ और 2 उन्होंने मैपिंग कर लिया. और इवन जिस समय वो अर्थक्वेक आया था, several agency made the remote sensing data available free of the cost, so that ki you can identify which are the location which are more hit and you can send your rescue team there. तो इन सब चीज़ों में फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी है आपके पास. तो ड्रोन टेक्नोलॉजी है दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सैटेलाइट. सैटेलाइट होता है कि आपका फिक्स टाइम इंटरवल के बाद आता है. लेकिन आज के डेट में इतने सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं कि अगर हमें किसी भी एरिया का मैप कभी भी चाहिए तो वो हमें मिल जाता है. ऑलवेज अवेलेबल. सम सैटेलाइट इज ऑलवेज अबव यू. बट अगर मान लीजिए कोई नहीं है तो आपके पास ड्रोन है. ड्रोन से आप मैपिंग कर सकते हैं तुरंत. और AI/ML टूल्स आ रहे हैं. तो यानी कि रिमोट सेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आ जाते हैं, इसमें आपके कंप्यूटर साइंस वाले भी आते हैं. तो हर डोमेन को ये टच करता है. कंप्यूटर साइंस का काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन है, क्योंकि सैटेलाइट ने आपको डेटा दे दिया या ड्रोन ने आपको इमेज दे दिया. अब उस इमेज को आपको एनालाइज करके मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन भी निकालना है. तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए आपको AI/ML का यूज़ करना होगा. So, if any student want to pursue MTech in this remote sensing, so what are the basic subjects? जैसे BTech करके आया तो सिविल के सब्जेक्ट्स वो पढ़ के आया है. So कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए सर कि जिसमें उसका पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए, दैट अब मैं बोल सकता हूँ कि ये आपके बैकग्राउंड, ये आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर सकें, इन चीज़ों को यूज़ कर सकें रिमोट सेंसिंग में, दैट विल बी मोर हेल्पफुल. अगर BTech सिविल की मैं बात करूँ तो वो वाटर रिसोर्सेस और इन्वायरमेंट एंड ऑफ कोर्स सर्वेइंग तो उनका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए. तो ये सब अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो रिमोट सेंसिंग में एमटेक के लिए आप जा सकते हैं. IIT रुड़की में एमटेक होता है, कानपुर में है, बॉम्बे में है एमटेक रिमोट सेंसिंग, और भी काफ़ी जगहों पे है. तो इन सब जगहों पे आप जा सकते हैं. दूसरा, अगर आप रुड़की के में भी देखिएगा तो वहाँ पर भी एमटेक सिर्फ BTech सिविल वाले नहीं आते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी आते हैं रिमोट सेंसिंग में एमटेक करने के लिए. क्योंकि रिमोट सेंसिंग में जैसा मैंने बताया आपको कि डेटा आया तो डेटा एनालाइज करने के लिए आपको अब इमेज प्रोसेसिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी पढ़ते हैं. तो दे आर नॉट वेरी डिफरेंट. अगर आपका इंटरेस्ट इनमें से किसी भी एरिया में है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ही आपको सिग्नल प्रोसेसिंग का में इंटरेस्ट है, यू कैन कम टू रिमोट सेंसिंग. एमटेक रिमोट सेंसिंग में आप आ सकते हैं. और एमटेक रिमोट सेंसिंग में आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यू कैन ब्रिंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. यहाँ पे अगर आप रिमोट सेंसिंग की बात कीजिए तो एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है एल्गोरिदम डेवलपमेंट. तो एल्गोरिदम डेवलपमेंट की जो बात होती है वो सिविल वालों से ज़्यादा अच्छा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कर सकते हैं. सिविल वाले जो है एप्लीकेशन डोमेन पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो होता है सिविल और अर्थ साइंस वालों का बैकग्राउंड क्या होता है कि आपने वाटर पढ़ा है, आपने इन्वायरमेंट पढ़ा है, आपने जियो टेक्निकल पढ़ा है. तो आप उस रिमोट सेंसिंग के एज अ टूल उसको यूज़ करके आप डिफरेंट चीज़ों को, जैसे लैंडस्लाइड में, ग्लेशियर में, फ्लड में, इन सब चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो. वो कंप्यूटर साइंस वालों को एक पहले तो उन्हें फ्लड समझना पड़ेगा, लेकिन जहाँ बात आती है AI टूल डेवलप करने की, तो सिविल वालों को सिविल वाले बहुत कोडिंग अच्छा भी कर लेंगे, लेकिन
कंप्यूटर साइंस वालों से तो आप उतना नहीं कर सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग उस पे हुई है। तो हर डोमेन पे आप काम कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हर एक लोगों का है, सभी लोगों को आना चाहिए इसमें। ओके, सो एज यू सेड दैट एमटेक के लिए आईटी रुड़की आपने बताया, आईटी बॉम्बे, जैसे आपने डिफरेंट आईटीज़ के नाम लिए। आप आईटी रोपड़ की जब मैं बात करता हूँ रिमोट सेंसिंग में, सो वो क्या पीएचडी के लिए बात करता है, मतलब पीएचडी के हमारे पास कोर्सेज हैं? हाँ, या पीएचडी में हमारे पास हैं, और पीएचडी में हमारे पास बहुत अच्छे अभी तक मैं आउटपुट भी बोल सकता हूँ। हमारा जो पहला पीएचडी स्टूडेंट था, ही इज़ फैकल्टी इन आईआईटी पटना। सेकेंड पीएचडी स्टूडेंट हैज़ गॉट द पोस्ट डॉक इन नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी। Third PhD student who is coming out has got very good publication, and I am very sure he will be getting some postdoc position. He has not yet submitted, but he will be getting before his submission he will be getting some position. Fourth PhD student who is going to come out this year is faculty in Punjab Engineering College. So we have a decent background which can say that our output is very well. Yes. And one student, BTech student I can say, Laukesh, his name was Laukesh. He did his BTech. He was interested into remote sensing, so he did some BTech, एक छोटा सा project करना पड़ता है, BTP project. So he did his BTP project with me. Published a paper. 2019 there was a flood in Roper. Okay. So he worked on that. He published a paper. Now he got more interested into remote sensing. He did his MTech from IIRS. Okay. Then now he has been selected for PhD position in IIT Bombay. Because he could have been he could come here, but actually the thing is that when you are doing a BTech from one organization, you should go have a different visit different organizations for different degrees. So it will give you more open perspective that how things are done at different organizations. So remote sensing output from our department, I can say that is very good, very excellent. The publications we can see from our lab is very good. We have published more than 20-30 papers after I joined here. So all thanks to our student, in Q1 and Q2 journals. Most of them are in Q1 journals. Recently we got a paper in IEEE Geoscience and Remote Sensing magazine. That was a review paper on scatterometers, and I can say that is the first paper from India. Okay. Got published in that journal. Okay. So, and that too also a review paper, which was a very and that review was on the scatterometer, that is a ISRO satellite. Okay. So right, sir. So if any of you wants to pursue your career, if you have interest in this remote sensing, because it has a great opportunities in upcoming years, so you can, if you want a PhD, if you want to pursue this your PhD course in this remote sensing, you can come IIT Ropar, because there's a great opportunity there. After PhD you will have great options, क्योंकि एज सर टोल्ड मी कि काफ़ी सारे जो इनके स्टूडेंट्स रहे उन्होंने दे हैव गॉट पोजीशन एज अ फैकल्टी इन IITs इन पैक पंजाब कॉलेज, एंड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव एरियाज़ में वो काम कर रहे हैं. सो अगर आपका इंटरेस्ट है PhD करने का, तो यू कैन कम हियर. अच्छा सर, इफ़ एनी स्टूडेंट्स वांट टू जॉइन विद यू, वांट टू इंटरेक्ट विद यू, what is the कैसे वो आपसे ज्वाइन कर सकता है? They can send me an email. My email is available in the website. Okay. My phone number is also available in the website. Okay. And I can give it to you. You can put it in your comment box or anything. Yes. So my email and my phone number, they can contact me either way. I will be available for my students. I am available 24/7. If I don't pick up the call, I usually call back. Okay. So you can call, you can, because number is all, you can email also, and Dr. Reet Kamal Tiwari, just search on the website of IIT Ropar and you'll get the email, and also you'll get the contact number. Okay, sir. Thank you, sir, for giving us your valuable time. So and
अगेन सर, ये जो आपके साथ ये जो बातें हुई, जितना ज़्यादा सीखने को मिला है। एक्चुअली रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ा था, सब काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला था रिमोट सेंसिंग, बट इतना कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर होगी ये आपसे ही बात करके हमें पता लगा। तो सर थैंक यू। Thank you, your PDA for this lovely interaction and remote sensing। मैं अभी यही आपको कहूँगा कि एक टाइम पे जियोलॉजी का भी ऑप्शन बहुत कम हुआ करता था, काफ़ी कम लोग जाते थे। राइट। अब जियोलॉजी का भी ऑप्शंस काफ़ी है। उसी तरीके से रिमोट सेंसिंग प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं ग्राउंड में इंडिया में, एंड इट इज़ गोइंग to increase very exponentially। it will be one of the अगर आप जियो स्पेशियल का मार्केट शेयर देखिएगा, which is predicted it will overtake all the other sectors। so geospatial is going to be used for everything। so do your MTech, do your PhD, whatever thing that you want to do। maybe अगर आपको रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप PhD पोजीशन में जाइए। अगर आप, और इसमें आपके पास ऑप्शन है हर फील्ड में। अगर आप एप्लीकेशन में जाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में जाइए, आप कोड डेवलप करना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर टूल्स डेवलप करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं आप उसमें जाइए, आप सिग्नल प्रोसेसिंग से हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से हैं तो आप एल्गोरिदम डेवलपमेंट में जाइए। आप हर तरीके के फील्ड में जा सकते हैं, आप सैटेलाइट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है, और इन फ्यूचर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जिस तरीके से हैं वो काफ़ी इसको सपोर्ट कर रही है अभी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू।